آپ دیکھ رہے ہیں شہر شہر گاؤں گاؤں اور میں ہوں ویسے اقبال۔ سب سے پہلے رخ کریں گے رجحان کا، جہاں سیلاب سے سینکڑوں گھر اجڑ چکے ہیں۔ متاثرین بے گھر ہو کر انڈس ہائی وے کے قریب کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے علی اسد اللہ سے۔ جی، رودکوئی کے سیلابی پانی نے رجحان میں تباہی مچا دی تھی اور سینکڑوں بستیاں جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکی تھی۔ اس کے بعد جو متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہو چکے تھے انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر جو سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے انہیں جو ہے ٹینٹس تقسیم کر دیے گئے تھے، انہیں کھانا بھی پرووائڈ کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر اس کے بعد رودکوئی کے پانی جو ہے کچھ جو بستیوں کو افیکٹ کیا تھا اور یہاں پر متاثرین جو ہے یہاں پر آ کر بیٹھے، یہاں پر یہ شکایات کرتے ہوئے بارہ دکھائی دے رہے ہیں۔ جی چچا، بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا ہے آپ کو؟ جناب سر عارضی ہو ایسے کو اسا ترے مر گیوں، اسا نے نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھاونا ہے، نہ کوئی تمبو ہے، نہ کوئی اسا نے کئی چیز کا نہیں، اسا گل گیوں جو چٹکے دے دے۔ جی بالکل، جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور ہم جو ہیں یہاں پر تپتی ہوئی دھوپ پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو زندگی گزارنے کے لیے جو اصل چیز پانی ہوتی ہے وہ پانی بھی یہاں پر نایاب ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے انہیں جو کسی قسم کے سہولیات پرووائڈ نہیں کی جا رہی۔ ان کا پنجاب حکومت سے جو ہے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جو ہے سہولیات پرووائڈ کی جائے اور ہمیں ریلیف دیا جائے۔ میرپور خاص کی تحصیل جھڈو میں بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہونے سے لاکھوں روپے کا نقصان کا خدشہ ہے۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بتائیں گے شکیل مجاہد۔ جی بالکل، جھڈو میں گزشتہ روز تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارش کے بعد جھڈو شہر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ جھڈو کے بیشتر علاقے جن میں گول مارکیٹ ہے، شاہی بازار ہے اور اسٹیشن بازار سمیت اسٹیشن گراؤنڈ، اس تمام کے تمام علاقوں میں 2 سے 3 فٹ پانی کھڑا ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ تو 4 دن پہلے بارش آئی تھی، ماشاءاللہ پانی نہیں نکلا۔ اس کے بعد جو کل یہ بارش اور اندھی آئی ہے اس نے تو مانگے ہیں تقریباً کاروبار نہ 1000 آدمی جو بے روزگار ہو گئے۔ نہ ادھر کاروبار کی جگہ ہے، نہ ادھر سے گراس ہے رستہ، روڈ رستے گالیاں بالکل پھول ہوئی پڑی ہے۔ مارکیٹ جھڈو سے ریلوے گراؤنڈ ہے، کم سے کم 1000 آدمی روزی کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی، اس طرح جھڈو کے بیشتر علاقے ہیں وہ پانی کی زد میں آ چکے ہیں، جبکہ بجلی کا نظام دیکھا جائے تو کئی تیز ہواؤں سے جو ہے پول گر چکے ہیں۔ 11,000 لائن کے پول گر چکے ہیں، جس سے آدھے سے زیادہ شہر کی جو ہے لائٹ منقطع ہے اور شہری سخت گرمی میں سخت پریشان نظر آ۔ ادھر میرپور اور بھمر میں شدید بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ مزید بتائیں گے محمد امین بٹ۔ بالکل، آزاد کشمیر کے 2 اضلاع میرپور اور بھمر میں آج ہونے والی شدید بارشوں کے باعث میرپور اور بھمر کی انتظامیہ نے ایک ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ نشیبی علاقوں بالخصوص ڈیم ایریا، نہر کے ایریا جہاں بھی پانی کا بہاؤ زیادہ ہے اس کے لیے قدم نہ جائیں اور غیر ضروری آمد سے پرہیز کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے میرپور انتظامیہ بھرپور اپنا کردار ادا کر سکے۔ گزارش کی ہے کہ وہ پانی کے نشیبی علاقوں کی طرف جانے سے گریز کریں۔ لسبیلا کے تاریخی شہر بیلا میں دریائے پرالی کے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی ہے۔ گوٹ بجارانی مانگیا کے دیہات میں متعدد مکانات منہدم ہو گئے۔ علاقہ مکین اب بھی حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں سیلاب نے قہر ڈھا دیا۔ تحصیل بیلا میں دریائے پرالی نے مشرقی سمت میں واقع گوٹ بجرانی مانگیا میں تباہی مچا دی ہے۔ 20 سے زائد گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ بیلے کے گوٹ بجرانی مانگیا کو اثر نو آباد کرنے کے لیے متاثرین کو متبادل جگہ منتقل کرنا ضروری ہے۔ متاثرین نے حکومت بلوچستان سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ ادھر آزاد کشمیر کی تحصیل برنالہ میں مانسون بارشوں کے چوتھے اسپیل نے ہر جانب تباہی مچا دی۔ مختلف علاقوں میں بجلی غائب ہے۔ حفاظتی پل نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ آزاد کشمیر کی تحصیل برنالہ میں مسلسل بارش نے تباہی مچا دی۔ حفاظتی پل نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ندی نالوں کو پار کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ مختلف علاقوں میں بجلی کے فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیرو والا نالہ پر جلد از جلد پل تعمیر کیا جائے۔ مردان کی تحصیل کاٹلنگ کے علاقے کنج میں نامعلوم افراد کے گھر میں گھس کر فائرنگ، جس کے نتیجے میں ماں بیٹی جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ مردان کی تحصیل کاٹلنگ کے علاقے کنج میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ماں بیٹی جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو مردان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے۔
पिंड दादन खान में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिखर गए हैं। सयाह और स्कूल के बच्चे बरसाती पानी में फंस गए। इंतजामिया की जानिब से ताहाल रास्ते क्लियर नहीं हो सके हैं। मजीद बताएंगे चौधरी सलीम बागड़ी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खिवड़ा साल सिटी के दाखिली दरवाजे पर, जहाँ पर गुज़श्ता चंद घंटों से होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस पहाड़ी नदी नाले बिफर गए हैं और जिनके पानी ने मेन हाईवे रोड को मसदूद कर लिया है, जिसके बायस खिवड़ा साल सिटी को देखने वाले आने वाले सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद भी फंस कर रह गई है। जबकि स्कूल की छुट्टी का टाइम होने के बायस तालिब इल्म भी इस पानी के बायस अपने घरों को पहुँच नहीं पा रहे। अवाम का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इंतज़ामिया पानी की गुजरगाहों को वागुजार कराकर पानी की निकासी के रास्तों को खुलाए ताकि अवाम अपने घरों को पहुंच सके। दरियाए सिंध में काजी अहमद के करीब पानी की सतह में इजाफे से कच्चे के कई देहात से रियाब आ गए हैं। पानी में फंसे अफराद ने इंतजामिया से मदद की अपील की है। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मुत्तादिद देहात से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस मकीन अब भी पानी में फंसे हैं। पानी में फंसे अफराद की इंतजामिया से मदद की अपील, लोगों ने सोशल मीडिया की मदद से भी अपील की है। आपको एक मरतबा फिर बताएं कि काजी अहमद के कच्चे के कई देहात उनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। झंग में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, ज़ायद उल मयाद और टेम्पर्ड बोतलों की बड़ी खेप पकड़ ली। मुलजिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का शिकंजा सख्त होने लगा है। झंग में हजारों एक्सपायर्ड बोतलों की एक्सपायरी डेट तब्दील करके बेचते हुए मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। 1200 से ज्यादा एक्सपायर्ड बोतलें, 48 टेम्पर्ड बोतलें भी कब्जे में ले ली गईं। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रुख करेंगे कश्मीर का, जिसकी तहसील तंगवानी में लंपी स्किन के वार जारी हैं। लंपी स्किन से मुत्तादिद जानवर हलाक हो गए हैं। शहरी जानवरों की बाकियात नहरों में डालने लगे हैं, जिससे इलाके में ताफुन फैलने लगा है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि कश्मीर की तहसील तंगवानी में लंपी स्किन के वार जारी हैं। लंपी स्किन से मुत्तादिद जानवर हलाक हो चुके हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सुबहान अली से। सुबहान, बताइएगा महकमा लाइफ स्टॉक क्या कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल, तंगवानी और गिरदोनवा में लंबी स्किन वबा शक्ल की अख्तियार करने लगा है, मगर इंतजामिया खाबो खरगोश की मजे लूटने में मसरूफ है, जो कि जानवर खौफ के वारिस में बायस दम तोड़ रहे हैं। लेकिन लोग सरेआम सड़कों के किनारे पर लाशें फेंक रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ जानवरों के नहरी में पानी फेंकने से वबा फैलने लगी है। जानवरों की बाक़ियात को सरेआम फेंकने वालों के खिलाफ इंतजामिया ने अभी तक ऐसे कोई इक़दाम ना ही उठाए, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आज़ाद कश्मीर में 30 साल बाद बलदियाती इंतखाबात के लिए स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। पोलिंग 28 सितंबर को होगी। कागजात नामजदगी 15 से 22 अगस्त तक जमा करवाए जा सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलेहरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंतखाबात का स्केड्यूल जारी हो चुका है, जिसके बाद बलदियाती इदारों में तैनात तमाम सवाबदीदी ओहदेदारों को फारिग कर दिया जाएगा। बलदियाती इलेक्शन का स्केड्यूल जारी होने के बाद तमाम तरक्याती फंड्स और मंसूबों पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पायलट मेजर सईद के घर पहुंच गए। आगा सिराज दुरानी की शहीद सईद तलेव के वरसा से तासियत। आगा सिराज दुरानी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शहीद सईद हमारा फ़ख्र हैं, उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। उनका मजीद कहना था कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ बात करने वालों की मजम्मत करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं जो बारिशों के बाद रिलीफ काम में हिस्सा ले रहे हैं। आगा सिराज दुरानी ने शहीद मेजर सईद की कब्र पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी मांगी। पंजाब के वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के इजलास में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल इस्टेट्स में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज करने की हिदायत की है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सियालकोट के तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर करना होंगे। सूबे की 24 साला इंडस्ट्रियल इस्टेट्स में 1450 नए सनती यूनिट्स लग चुके हैं। सनती मराकज़ में तरक्याती काम दिन रात करके मुकम्मल किए जाएँ। सूबाई वजीर ने पैस्के की कर्जा स्कीम्स में तेजी लाने की हिदायत भी जारी की है।
अब आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम रहनुमा शेख अब्दुल अजीज़ शहीद की 14वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। शेख अब्दुल अजीज़ को भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तान की जानिब मार्च करने पर गोलियों का निशाना बनाया था। शहीद शेख अब्दुल अजीज़ को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रियासत के दोनों अतराफ भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर बुरहान वानी चौक में एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया। मुजाहरे में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शेख अब्दुल अजीज़ को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। अब आपको बताएं कि मानसून के 5वें स्पेल के बायस दरियाए चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। दरियाए चनाब में दरमियाने और ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरियाए चनाब के बैराजों पर पानी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बायस दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान नेवी की खुले समंदर में भारतीय कश्ती जमुना सागर के डूबने की इत्तला पर बरवक्त इमदादी कार्रवाई। तर्जुमान पाकिस्तान नेवी के मुताबिक डूबने वाली भारतीय कश्ती के 10 में से 9 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। नेवी के जहाज ने कश्ती डूबने के वाक़े में हलाक होने वाले एक भारतीय शहरी की लाश को भी समंदर से निकाल लिया है। इस हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि पाकिस्तान नेवी की खुले समंदर में भारतीय कश्ती जमुना सागर के डूबने की इत्तला पर बरवक्त कार्रवाई। तर्जुमान पाकिस्तान नेवी के मुताबिक डूबने वाली भारतीय कश्ती के 10 में से 9 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। पाकिस्तान नेवी के जहाज ने कश्ती डूबने के वाक़े में हलाक होने वाले एक भारतीय शहरी की लाश को भी समंदर से निकाल लिया है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से खुले समंदर में ये कार्रवाई की गई है। जबकि गुजरात और उसके गिरदोनवा में चंद घंटे की बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुसलसल तेज बारिश से पूरा शहर पानी में डूब चुका है। कचहरी चौक, प्रिंस चौक, चील चौक और जिना रोड पर कई फीट पानी खड़ा है। बारिश के पानी में दर्जनों गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स और रिक्शे बंद हो गए हैं। सड़कों और गलियों में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुजरात और उसके गिरदोनवा में चंद घंटे की बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। मुसलसल तेज बारिश से पूरा शहर पानी में डूब गया है। कचहरी चौक, प्रिंस चौक, चील चौक और जिना रोड पर कई फीट पानी खड़ा है। बारिश के पानी में दर्जनों गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स और रिक्शे बंद हो गए हैं। सड़कों और गलियों में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सक्कर में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्ज़ हिलाली, कौमी परचम, झंडियों, बैजेस समेत दीगर नित नए डिज़ाइन की अशिया की फरोख्त के लिए स्टॉल्स कायम हो गए। बच्चे, बूढ़े, जवान सब आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश हैं। मज़ीद बताएंगे सिबगतुल्लाह। जश्न आज़ादी में चंद रोज बाकी। सक्खर के बाजारों में जा बजा सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बच्चों और जवानों समेत शहरियों ने कौमी परचम और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। 14 अगस्त हम शान शौकत से मनाते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है। हम लोग यहाँ से खरीदारी भी की है। हमने यहाँ से झंडे लिए, झंडियाँ लिए, अपने घर को सजाते हैं। 14 अगस्त हम जो बड़े जोश खरोश से मनाए जाते हैं। ये एक आज़ाद मुल्क है और इसमें बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बड़े जोश खरोश से बनाए जाते हैं। हम अपने घर को सजाते हैं। दुकानदार कहते हैं महंगाई की वजह से आवाम शदीद मुश्किल में है, लेकिन महंगाई के बावजूद शहरी 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ है। 14 अगस्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, उसकी खुशी में हम अपने बच्चों के लिए कुछ सामान वगैरह, कुछ ये सारे सूट वगैरह ये लेने आए और इंशाल्लाह हम जोश और जज्बे में अपने घर सजाते हैं और कौमी तराने चलाते हैं। 14 अगस्त हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। कायदे-ए-आज़म ने बड़ी जदोजहद की, जो ना अभी हम आज़ाद घूमते फिर रहे हैं। दूसरों मुल्कों में देखो लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। शहरी कहते हैं आज़ादी के दिन पैगाम देंगे, पाकिस्तान आज़ाद और अमन का गहवारा है। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, न्यू न्यूज़ सक्खर। सक्खर की तरह कोयटा में भी यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। नौजवान और बच्चों समेत शहरी पाकिस्तानी परचम और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। इस्मत अमान समलानी की रिपोर्ट। कोयटा में यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। बच्चों और जवान समेत शहरियों ने कौमी परचम और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी के लिए मोती राम रोड का रुख कर लिया। बच्चों का कहना है कि वो यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाना चाहते हैं। हम 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं।
हमें बहुत चीज़ें चाहिए अभी 14 अगस्त की। हम लोग ने 14 अगस्त में हमें बहुत मजा आता है। शहरियों का कहना है आज़ादी एक अजीम नेमत है, इसलिए इसका इज़हार भी भरपूर अंदाज से होना चाहिए। आज़ादी जो है ना वो बहुत बड़ी नेमत है, तो इसकी जो है ना वो हम सबको कदर करनी चाहिए। बाकी ये है कि तैयारी हम यही कर रहे हैं कि देखिए बच्चों के लिए जो है ना वो झंडे झंडियाँ और घर को सजाने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करें। लोगों का कहना है कि वो मुल्क के 76वें यौम आज़ादी को मिसाली बनाना चाहते हैं। कैमरा टीम के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। जश्न आज़ादी करीब आते ही सिब्बी में भी मुख्तलिफ मकामात पर परचमों और झंडियों के स्टॉल सज गए। शहर भर में सब्ज़ हिलाली परचमों की भरमार है। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानेंगे रमेश कुमार से। जी, जैसा कि अगर बात करें 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से, तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर शहरी बच्चे और ख़वातीन जो कि कौमी परचम ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। और हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। शहरों की तरह मतलब 14 अगस्त जोश खरोश से मना रहे, यहाँ पे मतलब बच्चे भी झंडी की ख्वाहिश कर रहे हैं कि भाई हमें झंडी ला के दे दो। और इसी तरह मतलब हम गाड़ियों पे लगाया और बाइकों पे लगाया हुआ झंडे। जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि 14 अगस्त हम जोश व जज्बे के साथ मनाएंगे और सिब्बी शहर एक तारीखी शहर सत्ता बुलाया जाएगा 14 अगस्त के हवाले से। जी, खुशाब में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो जज्बे से जारी हैं। शहरियों ने स्टॉल्स का रुख कर लिया। बच्चे बड़े सभी पाकिस्तानी परचम, झंडियाँ और स्टिकर्स खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद सरफराज मेकन। 14 अगस्त तो आज़ादी का जश्न मनाना जिंदा कौमों की निशानी होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में, जहाँ मुल्क भर की तरह जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहरियों ने स्टॉल का रुख कर लिया है। सबज हलाली परचम, बैग, स्टिकर, झंडियाँ, जबकि बच्चों के लिए पाकिस्तानी परचम की बनी टोपियाँ, कपड़े खरीद कर खुशी देनी है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, 14 अगस्त 1947 हमारी आज़ादी का दिन है और हमें चाहिए कि बच्चों के लिए झंडियाँ, कपड़े वगैरह लेके जाएं और घर में भी लगाएं, और दूसरों को भी चाहिए कि इस चीज़ का इंतज़ाम करें, क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत अहम है। जी, जैसा कि आपने सुना कि शहरी का कहना है कि 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान की आज़ादी हासिल करने वाले की कुर्बानी को याद करने का नाम है। हमें चाहिए कि आने वाली नस्लों को यौम आज़ादी के हवाले से आगाही फराहम करें। जी, मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर भर में जश्न आज़ादी के स्टॉल सजे हैं। मज़ीद बताएंगे फरहान हाशमी। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जो मुजफ्फरगढ़ में भी जश्न आज़ादी की जो तैयारियाँ हैं वो अरूज पर है। शहर में जगह जगह जो है स्टॉल सज चुके हैं, जहाँ कौमी परचम, झंडियाँ, बैजेस और जो दीगर सामान है वो इधर इन स्टॉल पर मौजूद है, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद जो है इधर ख़रीदारी के लिए आई हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शहरी, आइए इनसे जानते हैं कि इनके हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद है और इस बार इंशाल्लाह 14 अगस्त पूरी जोश व खरोश से मनाएंगे। घर भी से जाएंगे, झंडियाँ भी से जाएंगे, और जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा शॉपिंग करवाई है, उनको कपड़े भी दिलवा के दिए हैं। बाजा इस दफ़ा बच्चों का पसंदीदा खिलौना है इस 14 अगस्त पे। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों के अंदर एक जो है जोश व खरोश नज़र आता है। इस मरतबा वो है 14 अगस्त को जो है पुरजोश तरीके से जो मना रहे हैं लोग, अपने घरों को, गलियों को जो है झंडियों से और जो झंडों से सजा रहे हैं। और जो बच्चे हैं वो भी 14 अगस्त के लिए बैजेस और दीगर जो सामान इधर खरीदने के लिए पहुँचे। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरी 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बताएंगे नासिर शेख। जी, पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से हैदराबाद में तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तिलक चाड़ी पर। यहाँ पर जो है जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ से शहरी ख़रीदारी कर रहे हैं। बेजेस, बैनर, इसके अलावा जो है झंडे, झंडियाँ और कपड़े जो है पाकिस्तानी परचम के बने कपड़े जो है ख़रीद रहे हैं। हमारे साथ एक नौजवान है। बेटा, आप क्या ख़रीदने आए हैं और आप किस तरह जश्न आज़ादी मना रहे हैं? हम बेज, गारमेंट्स, झंडा वगैरह ख़रीदने आए और हम जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छा स्टॉल लगा माशाल्लाह। जी, इनका कहना है कि ये जो है यहाँ से झंडे और बैजेस वगैरह ख़रीदने आए, ये अपने दोस्तों को भी देंगे और ख़ुद भी लगाएंगे। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में सजावट का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के बाज़ारों, शाहराहों को सजाया जा रहा है, सरकारी इमारतों पर भी चिरागा किया जा रहा है, और इसके अलावा जश्न आज़ादी के हवाले से जो है मुख्तलिफ़ तक़रीबात को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। जी, फैसलाबाद में बढ़ती हुई महंगाई बच्चों के तालीमी सरगर्मियों पर भी असरअंदाज होने लगी है। मार्केट में 50 रुपए में फ़रोख्त होने वाली कॉपी 80 रुपए तक जा पहुंची है, जिसके बायस बच्चों के वालिदैन शदीद परेशान नजर आते हैं। रिपोर्ट करेंगी जवेरिया नज़ीर।
मौसम गर्मा की तातीलात के बाद बच्चों की तालीमी सरगर्मियों को जारी रखना वालिदैन के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। एक तरफ पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक बच्चों की किताबों की कमी तो दूसरी तरफ कागज की बढ़ती कीमतों ने कापियां महंगी कर दी। मिडिल क्लास लोगों की अफोर्डेबिलिटी से ये चीज़ें ही बाहर हो गई। अब बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल हो गया कि जितना अब आप कह लें कि अमीर बच्चे पढ़ सकते हैं, मिडिल क्लास लोग जो बच्चे हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ ही नहीं सकते। दुकानदार कारोबार मुतासिर होने से परेशान हैं तो वालिदैन बढ़ते अखराजात से आजज आने लगे। 35% से लेकर 45% तक प्राइजेस अप हुई हैं, जिस वजह से कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी हो रही है। हर स्टूडेंट को ये हर क्लास में 2 बुक्स 3 बुक्स 4 बुक्स जा रही हैं, इससे ज़्यादा बुक्स ही नहीं है। स्टूडेंट आते हैं पूछ के चले जाते हैं, माँ बाप पेरेंट्स सब आते हैं, ऐसे बेचारे परेशान होकर घर जाते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि शरह ख्वानदगी को बढ़ाने और मुआशरे में तालीम आम करने के लिए हुकूमत फौरी इक़दाम करे ताकि बच्चों के वालिदैन की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ जवेरिया नज़ीर, नियो, फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि शाहकोट का कदीम कुआं आज भी माजी की याद दिलाता है। पानी निकालने का मुनफरिद अंदाज देखने से ताल्लुक रखता है। दिखाएंगे कामरान अली। कुएं से पानी निकालने का बरसों पुराना तरीका, जदीद दौर में भी कदीम रिवायत, आज भी जिंदा और ताबिंदा। शाहकोट के गांव कोटला कालुआ के काश्तकार जमीनों का सैराब करने के लिए आज भी कुएं से पानी निकालते हैं। इस कुएं को मकामी लोगों ने संभाल के रखा है ताकि एक तो तारीख की हिफाजत हो और दूसरा ये मीठा पानी उससे मुस्तफीद हो सके। बिजली की जरूरत ना ईंधन की, बस जोरे बाजू दिखाएं, मशीन चलाएं। मकामी अफराद कहते हैं ये तरीक़ेकार बुजुर्गों की निशानी है। ये अंदाज उन्हें कदीम रस्म रवाज से जोड़े रखता है। इस नौइयत के कुएं कभी कभारी दिखाई देते हैं, लेकिन मुनफरिद साख्त पहियों पर लगी बाल्टियों से गिरता पानी दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। कामरान अली, नियो न्यूज़, शाहकोट। मरी में बारिशों का सिलसिला जारी है। धुंध और बादलों ने मरी को घेरे में ले रखा है। सयाह इस मौसम से खूब महसूस हो रहे हैं। मजीद बताएंगे ताज बुखारी। जी ताज। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कोसार मरी माल रोड के ऊपर, जहाँ पे अगर मौसम की बात करूँ तो इंतहाई दीदनी मौसम है। सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है और इस वक्त भी बादल जो है वो आसमान को छू के वापस ज़मीन से आसमान की तरफ जा रहे हैं। स्याहों की अगर बात की जाए तो मलका कोसार मरी में इस वक्त भी स्याह एक अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं जो इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ एक कराची की फैमिली है, उनसे बात करते हैं। बहुत ठंड है यहाँ पर, कराची में तो गर्मी होती है और यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। धुंध है, बादल नीचे हैं और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को। इनका कहना ये है कि कराची से आए हैं, वहाँ पे बहुत गर्मी है और लोड शेडिंग है, जबकि ये मलका कोसार मरी का एक वतीरा रहा है कि इतने खूबसूरत बादल जो हैं इस वक्त भी जो है छाए हुए हैं और कश्मीर से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं और स्याह जो है फैमिलीज इस वक्त माल के ऊपर चहलकदमी कर रही है और इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी को चेयरमैन वापडा तैनात किए जाने का इम्कान है। चेयरमैन वापडा के लिए असम्बली में 3 नाम तजवीज़ किए गए हैं। विफाकी काबीना इन 3 में से एक नाम की मंजूरी की सिफारिश की गई है। विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली जा रही है। चेयरमैन वापडा के लिए असम्बली में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी का नाम सरे फहरिस्त है। चेयरमैन वापडा की तैनाती 5 साल के लिए की जाएगी। इसी हवाले से मजीद जाने के अपने नुमाइंदे रियाज थीम से। रियाज, क्या इत्तलात है? जी, नए चेयरमैन वापडा की तैनाती के लिए 3 नाम तजवीज़ किए गए हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी को चेयरमैन वापडा तैनात करने के हवाले से सरफहरिस्त उनका नाम लिया जा रहा है, जबकि बाकी जो 2 नाम हैं उनमें मेरिट पर शमसुद्दीन शेख का नाम समरी में दूसरे नंबर पर है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल का नाम समरी में तीसरे नंबर पर है। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना से ये 3 नामों में से एक नाम की समरी जो है वो सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कराई जाएगी, जिसके बाद उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। चेयरमैन वापडा की जो तैनाती है वो 5 साल के लिए होगी। इससे कबल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन चेयरमैन वापडा रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आपको बताया कि नौशहरा के इलाके अकबरपुरा के मकाम पर 4 साल पहले मुगल दौर में तामीर की जाने वाली मस्जिद का मेहराब वक्त के साथ साथ ज़मीन में धंसता चला जा रहा है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद शारिक।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के इलाके अकबरपुरा के मुकाम पर। यहाँ पर 4 साल कब्ल मुग़ल दौर में तामीर किए जाने वाले मस्जिद का महराब जो है वक्त के साथ ज़मीन दोस्त होता जा रहा है। इसी हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि मुकामी अफराद और मुंतज़मीन का ये भी कहना है कि मस्जिद इस दौर में अवलिया वक्त जो सैयद वहाब अल मारूफ अखवानी पंजू बाबा ने चूने और वज़ीरी ईंटों से तामीर किया गया है। इस 10 साल इसी मस्जिद में दीनी खिदमत का सिलसिला भी जारी है। तकरीबन 300 के करीब उलमा की दीनी तालीम से दस्तार फजीलत जो फराम की गई है। इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि महकमे आसार कदीमा की तहकीकात ने भी इसी महराब पर तहकीक करते हुए ये भी कहा है कि ये ज़मीन नरम और कच्ची होने के बायस महराब जो है ज़मीन में दसा जा रहा है। इसी कदीमी मस्जिद को देखने के लिए दूर दराज से जो है लोग इस महराब को देखने के लिए आते हैं, मस्जिद आते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलूँ कि जबकि इस मस्जिद के महराब के वक्त के साथ ज़मीन दोजी पर साइंस और महकमे आसार कदीमा के माहिरीन की तहकीकात और कुदरत के राज ने इस इलाके के मकीनों को भी हैरान कर रख दिया है। अब आपको बताएं कि खानेवाल पुरअमन खूबसूरत ग्रीन पाकिस्तान के स्लोगन से 20 साल साइकिलिस्ट शुमारी इलाका जात से 20 दिनों में हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके खानेवाल पहुंचे हैं। डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन खानेवाल के सदर अफजाल मिर्ज़ा ने उनका इस्तकबाल किया। नौजवान तालिब इल्म मलिक अदनान पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों के साथ साथ पाकिस्तान की दूसरी और दुनिया की 33वीं ऊंची कुरुम्बर झील को सर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत साइकिलिस्ट की सरपरस्ती करे तो मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। यूईटी पेशावर ने स्कूल के बच्चों को रोबोटिक टेक्नोलॉजी से रोशनास करवाना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को खेल खेल में रोबोट बनाना और चलाना सिखा रहा है। रिपोर्ट करेंगे शाहिद खान। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर में स्कूल के बच्चों के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी का आगाज। बच्चों को खेल खेल में रोबोट की तैयारी का अमल सिखाया जाने लगा। बच्चों को रोबोटिक टेक्नोलॉजी से रोशनास करने के लिए गुब्बारे फोड़ने के मुकाबले भी हुए। 5 दिन में ये रोबोट बनाया है, जिसकी वजह से हमने सारी कनेक्शन की थी और आखिरी में जो हमने वो शार्प वो जो स्टिक्स होती है वो हमने लगाए, सारे साइड पे लगाए, जिसकी वजह से हम विनर हो गए। मैंने इस मुकाबले में पार्टिसिपेट किया, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने आखिरी राउंड में जो है मैंने भी खेला। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर के मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की लैब में 1 हफ्ते की तरबियत के बाद बच्चे इस काबिल हो गए हैं जो न सिर्फ खुद रोबोट तैयार करते हैं बल्कि इसे मोबाइल सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल भी कर सकते हैं। यही इस कैंप की ब्यूटी है। इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। हमारी निगरानी में जितना काम हो सकना था वो किया, घर लेके गए, बाकी काम उधर किया। और ये सारा जो आप देख रहे हैं, सारी जो इसमें आर्टिस्टिक जो इन्होंने इनके